हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव एरिया। हमने लास्ट वीडियो में फैशन स्टडीज का करिकुलम देखा था फॉर ग्रेड 11 और अब हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो पीडीएफ मैंने ओपन किया हुआ है ये सीबीएसई का ओरिजिनल जो रिसोर्स मटेरियल है फैशन स्टडीज के लिए, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद अवर चैप्टर 1 दैट इज ओवरव्यू ऑफ फैशन। एज यू कैन see here हमारे चैप्टर 1 का नाम है ओवरव्यू ऑफ फैशन। सो लेट्स स्टार्ट। ओके सो फर्स्ट टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग फैशन इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हम लोग फैशन की इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन को पढ़ेंगे। So fashion has become an integral part of contemporary society. Integral means important or necessary to make something complete. Means fashion अगर हमारी लाइफ में नहीं होगा तो कुछ अधूरा अधूरा रह जाएगा. So it is an important part of our contemporary society, means modern society. It is an omnipresent aspect of our lives. Omnipresent means ऐसी चीज जो हर जगह present होती है and is one of the focal topics of print and electronic media, television and internet, advertisement and window displays in shops and malls, movies, music and modes of entertainment, etc. Fashion is a statement that signifies societal preferences created by individual and collective identities. Means fashion एक ऐसा statement है जो सिग्निफाई करता है सोसाइटी की प्रेफरेंसेस को, जो कि इंडिविजुअल या कलेक्टिव आइडेंटिटीज बनाती हैं। द की टू इट्स कोर स्ट्रेंथ लाइज इन इट्स एस्पिरेशन वैल्यू, जिसका मतलब होता है कि पीपल एस्पायर करते हैं फैशनेबल होने के लिए, कि मतलब उनके अंदर एक चीज़ है जो उनको पुश करती है कि वो ट्रेंडी चीज़ें पहने, फैशनेबल दिखें। Fashion travel across geographical boundaries and history, which influences and in turn is influenced by society. Fashion ट्रैवल करता रहता है एक एक जगह से दूसरी जगह, और हिस्ट्री से और सोसाइटी से इन्फ्लुएंस भी हो जाता है। हम इसके बारे में थोड़ा और आगे दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। Though the term fashion is often used synonymously with garment, it actually has a wider connotation. फैशन को जनरली गारमेंट से ही एसोसिएट किया जाता है। मीन्स गारमेंट और फैशन एक ही चीज समझी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फैशन एक टर्म बोलूँ तो आपके दिमाग में सबसे पहली जो पिक्चर आएगी वो गारमेंट की ही आएगी, बट इट एक्चुअली हैज़ अ वाइडर रेंज। मतलब ये सिर्फ गारमेंट से ही रिलेटेड नहीं होता है। अ गारमेंट इज नॉट फैशन मियरली बिकॉज इट इज worn. To become fashion, a garment has to reflect the prevailing socio-cultural ethos of the time. Ethos means characters or customs. So उस टाइम के जो customs हैं, socio-cultural customs हैं, जो गारमेंट होता है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, तभी वो फैशन बनता है। एज अ जेनेरिक टर्म, जेनेरिक मीन्स एक ऐसी टर्म जो कि बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करती है। सो एज अ जेनेरिक टर्म फैशन क्या क्या इंक्लूड करता है? फैशन इंक्लूड्स all products and activities related to your lifestyle or a lifestyle, that are clothes, accessories, products, cuisine, furniture, architecture, modes of transportation, vacation, leisure activities, etc. फैशन इन सबको इंक्लूड करता है, नॉट ओनली जस्ट द clothes. Fashion may therefore be defined as a lifestyle that includes all related products and activities and which reflects the prevailing socio-cultural ethos of the time. Because अगर वो socio-cultural ethos को नहीं reflect करेगा तो वो एक fashion नहीं कहलाएगा। Fashion has emerged as a globally relevant area of academic study which includes various aspects of fashion design, fashion technology, and fashion management. Due to the wide range of human and social aspects within its ambit means scope or the boundaries, it is also a topic of scholarly study by sociologists, psychologists and anthropologists. सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये तीनों होते कौन है। Sociologists are those who study human interaction, observe the activity of social, religious, political and economic groups. Psychologists are those who study human mind and behavior. Anthropologists are those who study origin and development of human societies and cultures.
Its multifaceted nature leads to numerous interpretations. Multifaceted means a thing which have multiple aspects. For an average person, fashion could generally refer to a contemporary and trendy style of dressing being currently in and which is likely to become out by the next season or year. अगर कोई एवरेज या कोई भी कॉमन पर्सन होगा तो उसके लिए फैशन क्या है? बस इतना कि वो एक ट्रेंडी स्टाइल है, वो अभी इन है, मैं उसको पहनूं, फैशनेबल दिखूं और वो नेक्स्ट सीजन आउट हो जाएगा. दैट्स इट. टू एन इकोनॉमिस्ट, अब इकोनॉमिस्ट कौन होता है? इकोनॉमिस्ट आर दोज हु स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन अ सोसाइटीज रिसोर्सेज एंड इट्स आउटपुट. सो इकोनॉमिक्स के लिए फैशन क्या होता है? इट प्रेजेंट्स एन एवर चेंजिंग डायनामिक सिनेरियो बिकॉज ऑफ इट्स पोटेंशियल टू मेक एनी प्रोडक्ट ऑब्सलीट विद इन अ सर्टेन टाइम स्पैन. क्योंकि फैशन एवर चेंजिंग है, फैशन कभी स्थिर नहीं रहता कि एक फैशन आज चल रहा है वही 10 साल बाद वही चल रहा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है. सो इट इज अ डायनामिक सिनेरियो, ये एक एक्टिव सिनेरियो है कि बदलता रहता है ये बिकॉज ऑफ इट्स पोटेंशियल टू मेक एनी प्रोडक्ट ऑब्सोलीट. क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट किसी न किसी वक्त पे चला जाता है विद इन अ सर्टेन टाइम स्पैन, including the desire for replacement even though the newer item may or may not necessarily function better. एक प्रोडक्ट की भी एक लाइफ होती है, वो एक सर्टेन टाइम स्पैन में चला जाता है, रिप्लेस हो जाता है, जबकि ज़रूरी नहीं है कि जो नया प्रोडक्ट आया है वो उससे ज़्यादा अच्छा फंक्शन करे. A sociologist is likely to perceive fashion as a product of socio-economic political factors prevailing within a country और इवन ग्लोबली एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. एक सोशियोलॉजिस्ट के लिए फैशन क्या होता है? फैशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ जो भी हमारी सोसाइटी में हो रहा होता है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैक्टर्स, जो उस टाइम के हमारे कस्टम्स होते हैं वो उसको रिफ्लेक्ट करता है एंड इवन ग्लोबली एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. साइकोलॉजिस्ट के लिए क्या होता है? इट कुड बी एन एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, ह्यूमन बिहेवियर और अ रिएक्शन टू सराउंडिंग इन्वायरमेंट. मीन्स साइकोलॉजिस्ट इसको किस तरह देखता है कि फैशन एक पर्सनालिटी का एक्सप्रेशन होता है. मीन्स आप जिस तरह से स्टाइल करते हैं, आप जिस तरह से फैशन को पहनते हैं, वो आपका बिहेवियर रिफ्लेक्ट करता है. It is difficult to separate the two sides of fashion, the frivolous from the serious aspects. मतलब फैशन की दो साइड होती हैं, एक तो नॉट वेरी सीरियस सिली एंड द अदर साइड इज सीरियस एस्पेक्ट. सीरियस एस्पेक्ट मीन्स बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी, और फ्रिवलस मीन्स जो ग्लैमर वगैरह आपको दिखता है. Beneath the aura of glamour, fashion is a serious business with a well coordinated cycle of activities from uh, from concept to creation. मीन्स फैशन एक सीरियस बिजनेस है जिसमें कि वेल कोऑर्डिनेटेड साइकिल ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें रिलेटेड होती हैं उससे. ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के कुछ भी बना दिया और 2 मिनट में बन गया और मार्केट में आ गया, ऐसा नहीं होता है. कॉन्सेप्ट से क्रिएशन की तरफ कैसे जाते हैं, उसमें कौन कौन इंक्लूडेड होते हैं? Merging the economic aspects of the industry with design, the organization of fashion industry includes linkages among a wide network of producers of raw material. सबसे पहले तो अगर कुछ बनाना है तो रॉ मटेरियल चाहिए होगा. देन द डिजाइनर्स जो उसको डिजाइन करें, उसको समझें, मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से उसको क्रिएट करें. फोरकास्टर्स जो उसको प्रेडिक्ट कर सके कि क्या ये मार्केट में सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा. मैन्युफैक्चरर्स जो एक्चुअली उसको बनाए. मर्चेंडाइजर्स मर्चेंडाइजर्स जो उसको स्टॉक करवा सके, जो उसको प्रोड्यूस करवा सके. रिटेलर्स एंड मीडिया पर्सन्स एक्सेट्रा. रिटेलर्स जो उसको सेल कर सके एंड मीडिया पर्सन्स जो उसको प्रमोट कर सके या एडवर्टाइज कर सके. This is achieved by supply chain which comprises of planned activities from raw material sourcing, manufacturing, marketing to sales. Supply chain प्लान्ड एक्टिविटीज इंक्लूड करती है जिसमें कि रॉ मटेरियल सोर्सिंग, देन मैन्युफैक्चरिंग, देन मार्केटिंग एंड देन सेल्स. फैशन गुड्स आर प्रोड्यूस्ड for different segments of domestic market and also for export, which generates foreign exchange and stimulates the country's economy. मीन्स फैशन जो होता है वो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी गुड्स होते हैं, वो डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं. प्रोडक्ट सिर्फ एक सेगमेंट के लिए नहीं प्रोड्यूस किया जाता है. मीन्स जैसे विमेन सेगमेंट के लिए अलग होते हैं या मिडिल क्लास सेगमेंट के लिए अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, अपर क्लास के लिए अलग होते हैं.
It includes both domestic trade, which refers to the fashion business within the country. अगर फैशन बिजनेस जो हो रहा है वो विद इन द कंट्री हो रहा है तो उसको डोमेस्टिक ट्रेड बोलेंगे, और अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस है मींस कंट्री के बाहर कुछ हो रहा है, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। अब फैशन इंडस्ट्री करती क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। द फैशन इंडस्ट्री डज द फॉलोइंग: it generates employment and facilitates payment of salaries to employees। सबसे पहले तो मान लीजिए अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई कंपनी या कोई बुटीक स्टार्ट करते हैं, तो आप उधर अकेले काम तो करेंगे नहीं, आप एक टीम बनाएंगे। तो टीम बनाने के लिए क्या करेंगे, आप हायरिंग करेंगे, तो उससे आप क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। सो फैशन इंडस्ट्री जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, contributes to the national economy through purchase of materials and services as well as payment of taxes। अगर आप कोई कंपनी खोल रहे हैं तो ऑब्वियसली आप टैक्सेस पे करेंगे गवर्नमेंट को, तो ये क्या होगा, नेशनल इकोनॉमी में आपका कंट्रीब्यूशन होगा। It contributes to the growth of domestic trade and market in terms of time and effort, money incurred on the account of raw material manufacturing, marketing, product creation, innovation as well as promotion or marketing within the country। मतलब कि हमारा डोमेस्टिक ट्रेड भी इससे ग्रो होता है। कैसे कि अगर आप किसी मान लो दूसरी जगह से मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं या रॉ मटेरियल खरीदते हैं या मार्केटिंग कराते हैं, तो इससे दूसरों का भी फायदा होता है। क्रिएट्स फॉर प्रॉफिट फॉर द कंपनी एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज, मतलब कंपनी के लिए तो प्रॉफिट होता ही होता है और उससे रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं उसके लिए भी प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैशन से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री थ्रू द इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड। अगर हम बाहर बेचते हैं अपना जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है तो उससे क्या होगा, हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। लेट्स कम टू definition of fashion. Tom Bernard traces the origin of the word fashion to the Latin word facere, which means to make or to do. This includes the doer process of making as well as doing, be it clothing or appearance. Fashion has wide-ranging implications. This means effect on something that will reflect in future, engaging with a multitude of surrounding influences. In simple terms, fashion can be defined as a style that is popular in the present time और अ सेट ऑफ ट्रेंड्स व्हिच हैव बीन एक्सेप्टेड बाय अ वाइड ऑडियंस। बिकॉज अगर उसको कोई एक पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है किसी ट्रेंड को तो वो फैशन नहीं बनेगा। सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि वो ट्रेंड एक्सेप्ट किया जाए बाय अ वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस। The Webster International Encyclopedia 1998 defines fashion as prevailing style of dress, particularly new designs representing changes from previous seasons। Fashion educationist and writer John Hopkins defined fashion culture as a system that unites individuals। क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी और मेरी थिंकिंग सेम मैच करती है, हम लोग सेम तरह से स्टाइल करते हैं, सेम तरह से ट्रेंड को फॉलो करते हैं, तो क्या होता है, हम एक दूसरे के फ्रेंड बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रखते हैं। सो इट यूनाइट इंडिविजुअल्स, establishes its own rules and offers a societal structure in relation to current condition and societal norms। Some of the quotes of fashion designers indicate their philosophies, means their ideas and approach to fashion. Let's see what Giorgio Armani says. I have tried to find a new elegance. It's not easy because people want to be shocked। मीन्स पीपल वांट चेंज, और चेंज भी उनको ऐसा चाहिए होता है जो उनको शॉक कर दे, सरप्राइज कर दे। दे वांट एक्सप्लोसिव फैशन बट एक्सप्लोजन्स डोंट लास्ट, they disappear immediately and leave nothing but ashes। My philosophy is evolution but not revolution। Let's see what Ralph Lauren has to say. I have never been about fashion and trends. I believe in design that has lasting integrity। Let's see what Donna Karan has to say. I never see one woman when I design. It's a universe of women. Clothes are a canvas to their individuality. Obviously, this is true. Let's see what Donatella Versace has to say. I am always driven to push forward, searching for what is modern, that what motivate me। Obviously, we can see that in her designs। Let's see what Issey Miyake has to say. I am a part of my past, but I look to the future. That is what the fashion is. Fashion is a part of its past, but it looks to its future।
सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फैशन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फैशन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।